Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to World Mental Health Day, 10th of October 2020. This event has been organized by Pakistan Institute of Living and Learning in collaboration with Manchester Global Foundation and Global Mental Health and Cultural Psychiatry. I welcome you all today and thank you for taking out your time on a weekend. We will begin our presentation with the name of Allah. I would request Mr. Umair Ehsan to please recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Translation. Who, when disaster strikes them, say, indeed we belong to Allah and indeed to Him we will return. ترجمہ. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. Jazakallah. Thank you so much, Mr. Umair. Now, I would like to request Professor Naseem Chaudhry, Chief Executive Officer of Pakistan Institute of Living and Learning, to please talk about our institute. Ma'am, you're mute. Ma'am, kindly unmute your mic. Assalamu alaikum everybody और big welcome and thank you कि आज हम सब on 10th October जो World Mental Health Day के context में we've collected here today. मैं start करूँगी just a little bit about our organization. I'm sure most of you are aware of it, but just for those जो आज पहली दफ़ा हमें join कर रहे हैं कि हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1998 में एक बहुत ही एमिनेंट और प्रोमिनेंट साइकाइट्रिस्ट ऑफ हिज टाइम्स प्रोफेसर इशरत हुसैन, मेजर जनरल इशरत हुसैन, उन्होंने स्टार्ट की थी. एंड उसके पीछे उनका एम और मिशन ये था कि इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेलबींग, इन पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान. और इस over the years माशाल्लाह ये organization अब across Pakistan है. हम 5-6 major cities of Pakistan में based हैं. हम state of the art research in common mental disorders से लेके severe and enduring mental illness पे कर रहे हैं और हम across the spectrum काम कर रहे हैं from pregnancy to older adults. हमारी कोलैबोरेशंस हैं मैनचेस्टर ग्लोबल फाउंडेशन के साथ, तो ये भी इवेंट आज हम कर रहे हैं. बट नॉर्थ अमेरिका, यूके की यूनिवर्सिटीज से लोकल रीजनल कोलैबोरेशंस हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ. और हमारा मेन काम अराउंड मेंटल हेल्थ इश्यूज है, मगर हम बहुत रेजिंग अवेयरनेस इन आवर कम्युनिटीज़ और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे कर रहे हैं. So I don't want to take a lot of time, मगर आज का जो ये हमारा event है, this is part of a number of events that we are doing over this month. Mental health हम सबको पता है कि ये एक global burden है across the globe. और in the context of COVID, जो एक tragedy है, global tragedy, even more हमें mental health की to talk about it and to make sure that because the needs are rising,
In a country like Pakistan, جو even in the best of circumstances, ہمارے پاس services ایسی نہیں ہیں کہ ہم سب کی نیڈ پوری کر سکیں. اور اس کووڈ میں when we know کہ mental health لوگوں کی further deteriorate ہو رہی ہے. So an event like this I think is hugely important to understand کہ کس طرح کووڈ mental health پہ impact کرتی ہے. Thank you, Sameer. Sameer, you are mute now. Thank you so much, ma'am. Thank you for your kind words. I would now request Dr. Saima Daud, Director, Center of Clinical Psychology from University of Manchester, from University of Punjab, to please talk to us about mental health problems and COVID-19. Dr. Saima Daud. جی السلام علیکم ٹو آل. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ جو ہے وہ تھینک فل ہوں پل آرگنائزیشن کا، اور آپ جو کولیبریشن کر رہے ہیں مانچسٹر گلوبل فاؤنڈیشن کے ساتھ، تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ ہم اس ٹائپ کی اویئرنیس اور اس ٹائپ کے جو سیمینارز اور ویبینارز ہیں وہ ہم کنڈکٹ کرا رہے ہیں. اور میں ٹرو سینس میں اپریشیٹ کروں گی پل کی کنٹریبیوشن کو. جب سے میں پل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوئی ہوں تو میں اپنی، یہ میری ایکسپیرینس بھی ہے، میری آبزرویشن بھی ہے کہ پل جو ہے ڈفرینٹ ڈومینز میں، ریسرچ میں، سروس پرووائڈنگ میں اور کیپیسٹی بلڈنگ میں، ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں بہت افیکٹولی جو ہے پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں، جیسے کہ ڈاکٹر نسیم چودھری نے کہا، اپنا رول پلے کر رہی ہے ایک آرگنائزیشن کے طور پہ، اور مینٹل ہیلتھ کو اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. آج کے دن کے حوالے سے جو کہ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، اس کے حوالے سے، اور پلس پرٹیکولرلی جو اس وقت ایک بگیسٹ چیلنج ہے ٹو دا ہول ورلڈ وچ از لائک کرونا، اس کے حوالے سے ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ. تو اس سلسلے میں یہی کہوں گی کہ دس لائک ورڈ جو کرونا ہے، وہ آئی تھنک ہم سب نے جو ہے فرسٹ ٹائم اس کو December 19 میں سنا، بٹ سونر اگر ہم یہ کہیں کہ it took like the whole world as a storm, and now if we say that everybody knows about it, may it be a child or an adult, and basically this corona spread it so rapidly, not only in one country or in one continent, but it got affected in too many countries around the globe and disturbed every domain of life, and the whole world is still struggling, and scientists are putting their efforts together to get hold of it in order to bring the life back to the normal. So like what we saw and what we observed so far in this corona period or in this pandemic, that people are quite stressful, and fear and anxiety of catching the virus or having the disease made everybody emotionally disturbed. And it is very true if we say that anxiety and fear to have this like disease or corona overwhelmed the people of all ages around the globe. So there is a list of there is a long list of psychosocial problems which emerge due to this corona, and you may see that this includes fear, anxiety, depression, irritability, and frustration, and above all loneliness, because the whole socialization process has stopped and people were like restricted to stay at home and do everything from home. So it changed the whole lifestyle, not only in only one country, but around the globe. So there are so many associated other factors also related to psychosocial problems, significant change in sleep patterns, in eating patterns, or difficulty in concentrating, or difficulty in sleeping patterns, and then fear and worry about one's own health and health of your loved ones also. So there is one statistics which I would like to share vis-a-vis Pakistan, that in 2020 there was a significant rise in anxiety and depression, as it was in all over the world also. And in student population, 35 to 50% cases were reported with depression and anxiety. And vis-a-vis gender also, men showed in Pakistan less anxiety and depression as compared to women. And those who have
some family, friend or relative affected by this disease had very high score on fear or anxiety. And 43% anxiety were reported in frontline physicians, particularly those who were like encountering or who were like seeing the corona related patients like with a frequency of more than 5 patients in a day, or those who were working in hospitals more than 20 or like more than 20 hours per week in the hospitals. But regarding management of this anxiety and low mood symptoms, I would say as professional that we have to accept that it's a big health challenge which is being faced by all around the globe, and too much anxiety and fear will not work this thing out. However, we need to keep ourselves updated in order to take preventive measures, and also to know about the mechanism of its spread so that we can prevent our own selves, we can prevent our loved ones also. And in order to keep the emerging depression and anxiety in control, we don't need to sit in front of TV or news channels all the time. And socialization is also important, but now the new style of socialization needs to be adopted, and we need to focus more on maybe video calls and telephone calls instead of meeting and interacting with the people and going in the parties or in somewhere else. And this like emotional or mental health changes which you are seeing right now in front of the screen, that like people are traumatized, people are having this grief or fear of getting this disease. And above all, in Pakistan as a developing countries, people are facing lot of financial issues because here the health insurance or here the otherwise benefit by the governments are very low. So people have, and majority of the people are working on daily wages. So in this pandemic, while all these psychological issues related to anxiety and fear were related to this disease or virus also, but at the same time, the financial issues also raised many, like also give rise to the depression in many families or in many people. This is all from my side. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Saima. I really appreciate your time. And now I would like to request Professor Nusrat Hussain, Professor of Psychiatry and Director Research, Global Mental Health from University of Manchester, Honorary Consultant Psychiatrist from Lancashire and South Cumbria, NHS Foundation Trust, to please talk to us about online education performance, anxiety, and suicidal ideation. Sir, the floor is yours. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning in UK and good afternoon elsewhere. I would be talking in Urdu language, which is my usual, partly mixed with English. So if anybody does not understand Urdu language, please send it in the chat, and I'll try and put some things in English language also later on. So आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बात करना चाह रहा हूँ एडोलेसेंट्स के बारे में, बच्चों के बारे में, और ये जो एक चेंज आया है जो हमने फ्रॉम फेस टू फेस इन पर्सन से हम एक रिमोट पे चले गए हैं, मेजर चेंज है, अक्रॉस द ग्लोब है, और उसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, आप देख सकते हैं कि स्लाइड पे कि जिन बच्चों को माशाल्लाह कंप्यूटर अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं ऑफ मेकिंग दिस ट्रांजिशन, और जिनके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है उनके लिए और ज्यादा मुश्किल है, मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं। इवन अदरवाइज हमें ये देखने की जरूरत होगी कि एडोलेसेंट्स जो कि WHO के मुताबिक अप टू द एज ऑफ 24 लोग हैं, उनकी मेंटल हेल्थ अभी तक इतनी अटेंशन नहीं मिली जितनी अटेंशन उनको मिलनी चाहिए थी।
और इसीलिए अब काफी कॉल्स भी हैं, फोकस कर रही हैं ऑन एडोलेसेंस। हमें कोविड-19 से भी पहले पता था कि जो 50% ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं वो बिफोर द एज ऑफ 14 इयर्स शुरू होती हैं, एंड अप टू 75% जो हैं वो बिफोर द एज ऑफ 24 शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, और हमारी पाकिस्तान में बड़ी लार्ज पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 25। तो हमें इसको देखना पड़ेगा इस नजर से। हमें इसको इस नजर से भी देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ स्टंटिंग अप टू 40% है, जिसकी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ने भी रिसेंटली की ब्रेस्ट कैंसर डे पे, कि और हम में से बहुत से लोग उस स्टंटिंग के पीरियड से और मैल न्यूट्रिशन के पीरियड से और अंडर न्यूट्रिशन के पीरियड से निकले हैं। तो हमारी वल्नरेबिलिटीज कुछ अपनी जगह हैं, हम गरीब मुल्क हैं, 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी अंडर पॉवर्टी लाइन है। तो उन चीजों को अब सब नजर में रखें, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान की ये एग्जाम्पल है दी जा रही है दुनिया में कि इन्होंने कोविड-19 को अच्छा डील किया। अब एज अ नेशन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्टिकुलरली यंग लोगों की, कि ये जो हमने अचीव किया है बेहतरी, उसको हम मेंटेन कर सकें और उसको सस्टेन कर सकें। उसके लिए होगा कि वो अपने आप को कैसे रिजिलियंट रख सकते हैं। उसमें रिजिलियंस से ये होगा कि जिन लोगों ने ये ट्रांजिशन की है अबाउट के रिमोट डिलीवरी में, हाउ डू दे मैनेज दिस ट्रांजिशन। उनकी अगर यंगर चिल्ड्रन हैं तो उनकी पेरेंट्स की सपोर्ट कैसी है, ग्रैंड पेरेंट्स की सपोर्ट कैसी है, टीचर्स की कैसी सपोर्ट है। अच्छा, हमें टीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, पेरेंट्स, टीचर्स। हमें बचपन से सिखाया गया है कि उस्ताद आपके पेरेंट्स की तरह से होते हैं। अच्छा, उनकी एंजाइटीज अपनी जगह है कि एकदम वो उनको भी ये एक्सपीरियंस नहीं है, किसी ने ट्रेन नहीं किया, एक दिन उनको कह दिया गया जी कल से आप लोगों ने इस तरह से डिलीवर करना है। सो वो इंपॉर्टेंट है टू लुक एट इट। अच्छा, एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जी हाउ डू यू एंगेज विद योर टारगेट ऑडियंस। हमारे लिए, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मुझे मूविंग फ्रॉम कि मैं फेस टू फेस लोगों से मिलता था और टीचिंग करता था, अब सडनली मुझे जूम पे करनी पड़ती है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि सामने लोग क्या हैं, आई एम नॉट एबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट। तो उसकी अपनी एंजाइटीज होती हैं और उसके साथ डील करना है। तो इस ऑल टुगेदर हमें पूरे सिस्टम्स को देखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड कर लेंगे समीना प्लीज। अच्छा, एक बड़ी कंसर्न है, हमने बात की कोविड-19 की कर रहे हैं, इट्स अ ग्लोबल ट्रेजेडी का जिक्र किया डॉक्टर नसीम ने, डॉक्टर साइमा ने ऐसे किया। ये है नो डाउट अबाउट इट, तकरीबन 10 लाख लोग इससे डेथ्स हो गई हैं। ये तो डायरेक्ट है कोविड-19 से। सो अगर इनडायरेक्ट हम देखें कि लोग, अगर सिर्फ हम एग्जांपल मेंटल हेल्थ की लें, हालांकि ब्रेस्ट कैंसर और अदर कैंसर्स की भी है, हार्ट डिजीज की भी है, कि जिन लोगों को इलाज की जरूरत भी है वो भी नहीं जा रहे। अच्छा, मेंटल हेल्थ का हमको पता चल गया है कि प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, लेकिन मैं अगर यूके की भी बात करूं तो रेफरल्स कम हो गए, लोग आ कम रहे। तो हमें क्या अब करना पड़ेगा? हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क में वैसे ही हमारे पास हेल्थ सर्विसेज पे बहुत ज्यादा बर्डन है, हमको इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, और जो लोग हैं हमारे अराउंड उनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। वी वुड नीड टू बी मोर ओपन, और यूथ को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा टू बी एबल टू ओपनली टॉक अबाउट कि जी आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा, मैं डर रहा हूं या मैं घबरा रहा हूं, मेरा ये लो मूड है। और कभी आए जहन में ख्याल कि भाई हाँ, मेरा मर जाना ही बेहतर है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम किसी ना किसी से हम उसकी बात करें, और वो रेट्स लोग रिपोर्ट कर रहे हैं एट अ टाइम ऑफ दिस क्राइसिस बढ़ रहे हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं सुसाइड कंप्लीट कर लेते हैं एक साल के अंदर।
रिसेंटली सुसाइड प्रिवेंशन डे हुआ था, कुछ आप रिसेंट खबरें देखें जो, तो उसमें एक कि भाई क्लास 9th के बच्चे ने जो है केरला में, ये एक 15 ईयर ओल्ड बच्ची थी, उसने, उसके फादर वाज अनएम्प्लॉयड 2 महीने के लिए, वो पहले गरीब लोग थे, 2 महीना जो डेली वेजेस पे रह रहा हो कहां तक खींचेगा, किससे कितना कर्ज लेगा, तो उसने जो है शी किल्ड हरसेल्फ, और उसके नोट में था आई एम गोइंग, सो वेरी सैड। लेकिन मैं पिछले दौरों में भी कह चुका हूं कि लिविंग इज ऑलवेज एन ऑप्शन, तो हमें अपने बच्चों में, अपने जवानों में, अपने बुजुर्गों में, ऐसा नहीं है कि ये चीज बाकियों को नहीं अफेक्ट करे। फिर पंजाब का है कि 17 ईयर ओल्ड किल्स हरसेल्फ, एक का जिक्र है कि जी उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, उसने, और ये इतने छोटे बच्चे नहीं है, क्लास 10 का बच्चा है, तो इट इज अबाउट हाउ डू वी लर्न, हम अपने आप में वो रेजिलियंस कैसी डेवलप करें। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं अगर समीन प्लीज। तो ये तो मैंने आपको लिटरेचर का बता दिया कि हायर रिस्क है, और एक चीज हमको समझनी चाहिए कि ये इसके पीछे बड़ी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। डॉक्टर साहिबा जिक्र कर रही थी एंजाइटी का। अच्छा, 2 चीजें होती हैं जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, एक है डिप्रेशन और एक है एंजाइटी। एंजाइटी ये जब आपको कोई थ्रेट हो, मुझे कोविड हो सकता है, मेरे वालिद जो है काम पे जा रहे हैं उनको कोविड हो सकता है, उनको डायबिटीज हार्ट डिजीज है, कोविड हो गया तो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये एक थ्रेट है और उस थ्रेट से एंजाइटी होती है। अच्छा, डिप्रेशन क्या है, या मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं अगर काम पे नहीं जाऊंगा, मैं 15 दिन से मुझे क्वारंटीन करना है। और डिप्रेशन क्या होता है, एज ए हिस्ट्री ऑफ के भाई लॉसेस का होता है कि जी मैंने क्या खो दिया। तो अगर जॉब चली गई तो वो थ्रेट से लॉस हो गया, तो वो डिप्रेशन का, और नंबर ऑफ थ्रेट्स एंड लॉसेस आर अराउंड कोविड-19, उसको समझना होता है। और जब आदमी उसको मैनेज नहीं कर पाता और उसको लगता है मेरे लिए कोई रास्ता नहीं आउट है, तो वो उसके जहन में आता है कि आई एम बेटर ऑफ डेड। और इसमें ये पहली पेंडेमिक भी नहीं है, पहली एपिडेमिक भी नहीं है। वी नीड टू लर्न कि पिछले दौरों में कैसे किया है लोगों ने, कैसे इससे डील किया है। और साथ में आई मस्ट से कि जी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है। लेकिन एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वर्क विद सोशल मीडिया। क्या हम सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं जिससे हम, टू स्टार्ट विद, कि हमारी आईज एंड ईयर्स, if youth can be our eyes and ears and our ambassadors, how can they take forward this message? सोशल मीडिया में ये सब माशाल्लाह बहुत ज्यादा engaged हैं, तो उसको हमें देखना चाहिए कि हम कैसे करें और उसको आगे लेके चलें। इसमें मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि हमने एक दुनिया का लार्जेस्ट थेरेपिस्ट डिलीवर ट्रायल कंप्लीट किया है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेनिंग दी है। और ये एक ट्रेनिंग होती है जिससे आदमी सीख जाता है कि हाउ डू वी डील विद प्रॉब्लम्स। क्योंकि कभी कभी जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हैं वो बहुत बड़ी लगने लगती हैं, एंड उसमें हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इट्स ए स्किल जो आदमी लर्न कर सकता है, जैसे साइकिल चलाना सीख सकता है, इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीख सकता है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। और उस स्टडी में हमारा आया था कि हम वी वर एबल टू रिड्यूस सुसाइडल आइडिएशन। अच्छा, इससे हमने को क्वालिटेटिव स्टडी भी की है जिसके ये रिजल्ट्स हैं। ये पार्ट ऑफ एमफिल स्टडी थी और ये रिसर्चर हैं पिल में, इन्होंने माशाल्लाह ये कंप्लीट किया इसको। और इसमें हमने यही 10 ग्रेड के बच्चे, 11 ग्रेड के बच्चों के साथ किया। अच्छा, उसमें उन्होंने जब सेल्फ हार्म किया तो उसके कुछ एक्सप्रेशन दिए कि जी अब मैं एम्बैरेस्ड फील करती हूँ,
मैंने ऐसा क्यों किया, और कुछ लोग उसके बाद और ज्यादा सैड एंड डिप्रेस, लेकिन अगर सपोर्ट अवेलेबल हो तो लोग बेहतर उससे डील कर सकते हैं। और इसके लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि इसको लेके चलें। तो अब हमने वो किया था CMAP उन लोगों के साथ जो 18 इयर्स एंड ओल्डर थे, और उसके बाद हमको मेडिकल रिसर्च काउंसिल और दूसरे लोगों ये फंडर्स ने हमको ग्रांट दिए वाई CMAP। तो ये वाई स्टैंड्स फॉर यंग पीपल, यूथ, और ये कल्चरली अडेप्टेड हमारे पाकिस्तान के हिसाब से अडेप्ट हुआ है। तो पहले मैंने बताया हमने एडल्ट्स के साथ किया विच वी फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव, कि जी माशाल्लाह इवन लोगों को जो असेसमेंट्स हुए थे उनमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आई। सो इट मीन्स कि सिर्फ कॉन्टैक्ट एंड हेल्पफुल लर्निंग इट कैन ऑल्सो हेल्प। अब ये हम लोग कर रहे हैं यंग लोगों के साथ अप टू द एज ऑफ 18। हम लोगों ने बेस्ड ऑन दैट अर्लियर एमफिल प्रोजेक्ट हमने टोटल सैंपल, अगेन दुनिया का बहुत बड़ा लार्ज ट्रायल है, अबाउट 600 पार्टिसिपेंट्स। इसको हमने उसका जो इंटरनल पायलट कहलाता है वो हमने कंप्लीट कर लिया। मोर देन हमने 200 लोग रैंडमाइज कर लिए। इसमें लोग सेल्फ रेफर भी कर सकते हैं। अगर किसी ने सेल्फ हार्म किया हो तो वो पिल का जो नंबर है उसमें डायल करके the support would be available as part of the research only. So ये हम already adolescents के साथ काम कर रहे हैं और हमें उसकी थोड़ी बेहतर समझ आती जा रही है कि हमारे यंग लोगों में किस किस्म के प्रेशर्स हैं, किस किस्म के स्ट्रेसेस हैं। हमें ये भी देखना होगा कि हमारे कल्चर में बहुत स्ट्रेंथ्स भी हैं। हमारे जो मेजॉरिटी, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, हमारे रिलीजन में भी बहुत स्ट्रेंथ्स हैं। एंड हाउ डू वी बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ्स? ठीक है हम गरीब मुल्क हैं, ठीक है, और इस वक्त अब डिफिकल्ट टाइम से कर रहे हैं, लेकिन हमें वी नीड टू बिल्ड ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। इसी बेस पे बिल्डिंग ऑन आवर अर्लियर वर्क, एक हमारी कॉलीग हैं मारिया पेनेजियोटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, उन्होंने एक फंडिंग अगेन ग्रांट GCRF से उनको मिली है कि हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम काम करेंगे यंग लोगों के साथ कि कैसे ये हर एक को अवेलेबल हो सकता है। सो वाई CMAP तो सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने सेल्फ हार्म किया है। ये CPAC इस किस्म का है कि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। तो उसमें हम टीचर्स की भी स्किल्स बिल्ड करना चाहेंगे, उसमें जो इलाके के GPs हैं अगर उनकी जरूरत पड़ी, और यूनिवर्सली इंटरवेंशन होगी स्टूडेंट्स के साथ भी। तो जो ये स्कूल्स कॉलेजेस में अगर टीचर्स हैं और जो स्कूल्स वाले हैं अगर वो कांटेक्ट करना चाहें तो फिर से जरूर कांटेक्ट करें। द टास्क इज सो ह्यूज इसमें। तो मेंटल हेल्थ, और जब भी मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट भी होना और मार्क भी होना शुरू हुआ है कि हमें हर एक को, इट वुड नीड टू बी, everybody would need to come forward and say how I can contribute to promoting the mental health of our people. क्योंकि mental health को आप बाकी physical health से अलग नहीं कर सकते। Finally एक माशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सेहर M। इसमें हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल सर्वे भी कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, और इसमें हमें एक्चुअल पता चलेगा कि हमारी नीड्स क्या हैं। उसमें अगेन वी वुड वांट टू कोलैबोरेट अक्रॉस द कंट्री। इसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करेंगे, आजाद कश्मीर में भी इंशाल्लाह काम करेंगे, एंड नेक्स्ट ईयर जब हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में आएंगे तो वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। माशाल्लाह पाकिस्तान में अब काफी हेल्पलाइंस भी अवेलेबल हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन उमंग है जिनसे हमारी कुछ कोलैबोरेशन डेवलप हो रही है, उनकी भी हेल्पलाइन है। बाकी हेल्पलाइंस के नंबर्स इस जगह में दिए हुए हैं। मैं रोजन से भी वाकिफ हूँ और वो लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, जहां आपको महसूस हो प्लीज टेक दैट स्टेप कि जी आप फोन उठाएं और लोगों से बात करें। दे आर देयर, दे आर प्रोफेशनल, दे शुड बी एबल टू हेल्प यू।
اور آئی ایم شیور اگر ان کو کسی سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ کا ہوگا وہ آپ کو ادھر بھی ریفر کرنا دیں گے. اور مطلب میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سارے لوگ اوور دا ایئرز انہوں نے جو سپورٹ کیا ہے پاکستان کی میں ریسرچ کو, بل کو, یونیورسٹی آف مانچسٹر کو, کہ آج ماشاءاللہ پاکستان کی مینٹل ہیلتھ ریسرچ دنیا کی لیڈنگ ریسرچ ہے. وہ آپ سب کے بغیر سپورٹ اور کولیبریشن کے اٹ وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل. اور یہ کچھ فنڈرز ہیں ہمارے, MRC ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ریسرچ ہے, DFID ہے اور GCRF ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. Thank you so much, Professor Nusrat Hussain. I would now like to request Professor Zainab Zadeh, who is a professorial scientist and head of Division of Child and Adolescents Mental Health at Pakistan Institute of Living and Learning, to address the audience and talk to us about stigma associated with mental health and COVID-19. Professor Zainab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Good morning to people from UK. ابھی تک جتنی باتیں ہوئی اس میں ٹو تھنگز آر ویری کلیئر. ون کہ کووڈ-19 نے بہت اثر رکھا, دیر از اے ہیوج امپیکٹ. اس کی وجہ سے جسمانی صحتوں پہ بھی اثر پڑا, نفسیاتی صحت سائیکولوجیکل ہیلتھ پر بھی اثر پڑا. سو دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. ہم اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, ہم سب مانتے ہیں کہ اس نے بہت گہرا اثر چھوڑا ہے. دوسری اہم بات جو بار بار ہر لیول پر کسی نہ کسی نے اپنے اپنے طریقے سے اس پر روشنی ڈالی, وہ یہ کہ بات کرنا اس حوالے سے اس لیے ضروری ہے کہ دس از سم تھنگ وچ وی ڈونٹ ڈو یوزلی. ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے اوپن ہیں, ہم جتنے بھی مسائل ہیں اس کے بارے میں اوپنلی بات کرتے ہیں, ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ آج کی یوتھ بہت ایکسپریسو ہے. لیکن اگر ہم کسی فورم پہ ان سے کسی ذہنی صحت کے حوالے سے یا مینٹل ہیلتھ ایشوز جو کووڈ-19 کی وجہ سے ان کو ہوئے, ابھی ذکر آیا انزائٹی کا, ڈپریشن کا, ہم نے کتنے لوگوں کو یہ سب باتیں کرتے ہوئے سنا کہ وہ اوپنلی اس کی ہیلپ لینا چاہتے. اگر لینا چاہتے بھی ہیں تو جب انہوں نے اظہار کیا تو کتنی سپورٹ انہیں ملی. دس از این امپورٹنٹ کوشچن ایٹ دس لیول, جس کو ہمیں شاید بہت سنجیدگی سے ایک دفعہ سیریسلی سوچنا ہے اور ریفلیکٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم سہولیات کے ساتھ ساتھ وہ ماحول بھی دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو, اپنے جتنے بھی ایڈلٹس ہیں, کسی بھی لیول کا انسان ہو, چاہے وہ ہمارے بوڑھے ہیں ہمارے معاشرے کے, چاہے وہ کوئی بھی بہت بچہ ہے یا جو بھی ہے, اگر وہ مدد چاہتا ہے تو کیا ہم نے اس کو وہ ماحول دیا ہے کہ جس میں اگر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں پریشان ہوں تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا یہ کمزوری ہے, یا رونا اچھی بات نہیں ہوتی, یا غصہ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی. تو یہ سمجھنا کہ ایک بچہ یا ایک ینگسٹر اگر ایک کمرے میں یا کوارنٹائن کے وقت وہ کسی جگہ ریسٹرکٹڈ رہا ہے, اس کی لائف اس طرح سے نہیں تھی جو کہ روٹین میں ہونی چاہیے تھی یا ہوتی ہے, وہ بالکل اس طرح سے تھی جیسے کہ جیل میں ہوتا ہے اور ایک سلسلہ اس طرح کا تھا. تو ہم نے اس وقت بڑی ریسرچز کی یہ سمجھنے کے لیے کہ کسی کی ذہنی یا سائیکولوجیکل صحت پر کیا اثر پڑتا ہے. مگر اس وقت اگر اس کی بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم فزیکل ہیلتھ کے بارے میں زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں, اس کی بات بھی کرتے ہیں, مگر وہ ماحول جو کسی کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے بارے میں کھل کر بات کرے تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں ججمنٹل ہوں گے, ایویلویٹو ہوں گے. یوتھ کا ذکر بہت اس لیول پر ہوا, ڈفرینٹ پروجیکٹس اور ریسرچز کی بات بھی ہوئی. تو ہمارے ینگسٹرز بہت زیادہ اس بات پہ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ان پہ کوئی ایویلویٹو یا ججمنٹل بات نہ کی جائے. اور جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسٹگما کی بات آتی ہے. ہم ویسے بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بارے میں پہلے بھی کھل کر بات نہیں کرتے تھے, اب جب اس کے نتیجے میں وہ سامنے آ رہی ہیں تو اس میں بھی شاید سہولیات کی باتیں تو ہوتی ہیں, مگر وہ سپورٹ, وہ آئیڈیا جو انہیں ملنا چاہیے کہ کھل کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ کھل کر بتائیں گے تو شاید زیادہ مدد ہو سکتی ہے, اور پھر شاید یہ سوسائڈ یا آخری چوائس رہنا اپنی زندگی کو ختم کرنا اور زندگی کے جینے کے حق سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہٹا دینا, شاید وہ ایشو نہ رہے. اس لیے کہ شاید اس درجے پہ, اس لیول پر پہنچنے سے پہلے وہ کسی سے ہیلپ لے لے گا, مدد لے لے گا. وہ چیزیں جس کو تھوڑا میڈیا نے بھی ہمیں بتایا اور ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی دیکھا کہ جس کو کووڈ پازیٹیو ٹیسٹ ہوا
ہم نے جب انفارمیشن اسپریڈ کی میڈیا نے, ہم نے بھی باتیں کی, باقی ارد گرد کے لوگوں نے بھی بولا, سوشل آئسولیشن کی بات کو اس طرح سے لے لیا گیا جیسے یہ وہ شخص ہے جس سے اب شاید رابطہ رکھنا وہ اچھی بات تھی کہ ایک ڈسٹینس رکھنا ضروری تھا, سیفٹی کے لیے وہ بھی ضروری تھا, لیکن وہ رابطہ نہ رکھنا یا اس کو اکیلے چھوڑ دینا لونلینس کا باعث بنتا رہا, ڈپریشن کا باعث بنتا رہا, اسٹریس اس حوالے سے بڑھتا رہا کہ جب اسے لگا کہ میں شاید اکیلا ہوں اس سارے ماحول میں اپنی پریشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے. پھر اس ساری صورتحال میں جتنی سپورٹ ارد گرد کے ماحول میں موجود تھی اس نے لوگوں کی راتوں کی نیندوں پر بھی اثر کیا, کیونکہ جب سہولیات ویسی نہیں ہوگی, فائنینشیل جو لیول پر جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ویسے میسر نہیں ہوگی, تو اس کا بھی ایک اثر ہوگا. ڈر کی بات کی گئی, اس ڈر میں رہنا کہ اگر کسی کو کووڈ پازیٹیو ایک گھر میں کسی کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے تو اس کے ہمسائے اس سے رابطہ انہوں نے کم کر لیا, کسی گھر پر ایمبولینس آئی ہے, کسی اور کو اس جگہ پر ایک پرچہ لگا دیا گیا, تو اس سے متعلق بھی ایک اثر, ایک خوف, ایک انسیکیورٹی لوگوں میں پیدا ہوئی. تو اس چیز کو سمجھنا کہ یہ ایک یوزول رسپانس لوگوں کا ضرور آیا, مگر شاید انہیں یہ معلومات نہیں تھی کہ اس وقت اس سوشل آئسولیشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ شاید جن سے رابطہ ہی نہیں کیا جانا چاہیے, جنہیں اس پورے ماحول میں اکیلے چھوڑ دینا چاہیے. جب کووڈ کے وائرس نے اس میں فرق نہیں کیا کہ جوان بوڑھا, امیر غریب, سمجھدار ناسمجھ کون ہے, تو انسانوں نے جب اس کو اس طریقے سے دیکھا اور سمجھا کہ فرق کر کے اس پر رسپانس کیا, تو شاید لوگوں کے لیے یہ بیٹل مشکل ہو گئی اس پروسیس میں. اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلومات اگر زیادہ بھی ہے تو اس حوالے کے ساتھ ساتھ معلومات کے باوجود یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد عورت میں بھی فرق نظر آیا کہ خواتین جب ایک رات میں گھر میں ٹیچرز بن گئیں اور پھر گھر کی چیزوں کو بھی دیکھ رہی تھی, اور اگر ورکنگ وومن بھی تھیں تو ان پر جو اثر پڑا, اور جس طرح سے اگر ان کی فیملی میں کسی کو کووڈ ہوا, پھر جس ڈپریشن اور جس اسٹریس سے انہیں اس پروسیس میں گزرنا پڑا, اور کیونکہ ہمارے سسٹم میں ایک بانٹ کر گھر پہ کام کرنے کی عادت نہیں تھی, تو اس نے بھی ذہنی صحت پر ایک اثر چھوڑا اور اکیلے پن کے احساس کو بڑھایا. تو یہ لونلینس کا احساس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا. تو رسپانس اس حوالے سے ضرور ہے کہ خیال رکھا جائے, بات کرنے کی سیف اسپیس دی جائے, انگیجمنٹ کا موقع دیا جائے, تاکہ ڈسکرمنیٹری بیہیویئر ہو. ڈسکرمنیٹری بیہیویئر ہمارے لیے, یہ تفریق کا جو نظام ہے وہ کبھی بھی ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہوتا, کیونکہ اس سے جو پیدا ہوتا ہے وہ خوف پیدا ہوتا ہے, ایسا خوف پیدا ہوتا ہے جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں یہ بات کروں گا تو لوگ میرے بارے میں یہ سوچیں گے, میں اس چیز کا ذکر ایسے کروں گا تو پھر شاید اس کا نتیجہ یہ ہوگا, مجھے لوگ کمزور سمجھیں گے. اس طرح کے جذبات زیادہ تر لوگوں میں پائے جانے لگے, اور پھر معلومات کی کمی کی وجہ سے اس مسئلے میں اضافہ ہوا, کیونکہ ذہنی صحت سے متعلق ویسے بھی معلومات کم تھی. اس مسئلے میں جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو ماحول ہے وہ کسی جسمانی صحت کے مسئلے کو لے کر تو سپورٹو ہوتا ہے, مگر اسی جسمانی صحت کے مسئلے میں اگر کوئی اپنے آپ کو افسردہ محسوس کر رہا ہے یا انزائٹی میں محسوس کر رہا ہے یا کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے, تو اس سے بات چیت کر لینے سے, اس کو یہ احساس دلانے سے کہ وہ اکیلا نہیں ہے, اس کی وہ بڑی مدد کی جا سکتی تھی اور کی جا رہی ہے. اب بھی جو لوگ اس کام پر, اس راستے پہ چلتے ہیں, اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, وہ اس کا نتیجہ دیکھتے بھی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا معاشرہ, ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس میں ہم سب یکجا ہو کر, مل کر, جو بھی شخص ہے جو اس مسئلے میں گرفتار ہو کر, چاہے وہ خاندان ہے یا یہ ایک شخص ہے یا کوئی نوجوان ہے, اگر وہ اس میں گر کر کسی افسردگی کا شکار ہے, انزائٹی کے پرابلم سے گزر رہا ہے, تو وہ کھل کر اس پر بات کر سکے. کھل کر بات کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے گا, اکیلا محسوس نہیں کرے گا, اور کسی بھی مشکل کا سامنا بآسانی کر سکے گا. تو یہاں پر یہ بات ذہنوں میں شاید رہ جائے کہ ہاں یہ کوئی کچھ ایسی باتیں جس سے شاید لوگ یہ کہیں گے یہ تو منفی باتیں, اس کا ذکر شاید کھل کر اتنا نہیں کرنا چاہیے, اچھی باتیں کرنی چاہیے. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ہاں غم بانٹنے کی چیز نہیں, پھر بھی دوستوں ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو. تو ایک دوسرے کے حال سے واقف رہنے سے ہم وہ ریولیوشن شاید لا سکتے ہیں جو مینٹل ہیلتھ کی فیلڈ میں بھی ایک بڑی کامیابی ہوگی, اور کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والے جو ذہنی مسائل ہیں, جو سائیکولوجیکل ویل بینگ کے مسائل ہیں, ان کو بھی ہم مل کر شاید اس کا بہتر طور پہ مقابلہ کر سکیں گے. اسٹگما یا ڈسکرمنیٹری بیہیویئر ہیلدی نہیں ہوا, اور اگر میڈیا اس میں اپنا رول پلے کرے
تو ہم نے اس کے بہت بہتر نتائج دیکھے ہیں. ادھر صرف ذکر کروں گی کچھ ایسے ایڈورٹیزمنٹس میں نے ٹی وی پر دیکھے جس میں یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی آپس میں اس ایک سین میں یہ تھا کہ ایک خاتون ہے جو اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہیں کہ سامنے والے کو کووڈ پازیٹیو ڈائگنوز ہو گیا ہے, تو وہ اپنے جو شوہر ہے وہ جواب میں کہتے ہیں کہ سارے کھڑکی دروازے بند کر لو, ان سے کوئی رابطہ نہ رکھنا. وہ چائے بنا رہی ہیں اور چائے بناتے بناتے دوسرا کپ تیسرا کپ بھی ہوتا ہے, تو وہ صاحب ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تیسرا کپ کس کے لیے ہے. تو خاتون خانہ جواب دیتی ہے, جو وائف ہے وہ جواب دیتی ہے کہ یہ عمر کے لیے. کہا گیا ہے کہ اس کو اکیلا رہنے کے لیے کہا گیا, اسے اکیلا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا, کیونکہ جب کسی کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ سارے ذہنی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کا شاید مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کسی کے لیے. تو ذہن میں یاد رکھنا کہ جب وائرس اس میں تفریق نہیں کرتا تو ہمیں بھی اس میں تفریق کرنا ہمارے لیے بہتر ہے. بہتر یہی ہوگا کہ مل کے اس کا مقابلہ کیا جائے اور مل کر ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس میں لوگ محفوظ محسوس کریں. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, Professor Zainab, for your kind words. It's always a pleasure to hear you. Now I would like to call upon Dr. Amjad Chaudhary to talk to us about work stress during COVID-19. Dr. Amjad is addiction psychiatrist, head of teaching, training and developer at Global Partnerships of Pakistan Institute of Living and Learning. Dr. Amjad Chaudhary. Thank you very much, me. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. It's been great pleasure once again with the PIL team. اور یہ ایک بڑا ہی اہم دن ہے مینٹل ہیلتھ ڈے کا, جیسا کہ یہ دن جو ہے 1992 سے منایا جا رہا ہے, جب رچرڈ ہنٹر جو سیکرٹری جنرل تھے مینٹل ہیلتھ فیڈریشن کے, انہوں نے یہ سٹارٹ کیا 10 اکتوبر سے. آپ تقریباً 28 ایئرس ہو گئے ہیں یہ دن منایا جا رہا ہے. تو آج اس امپورٹنٹ دن کے موقع پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں. میں 13 فیبروری کو کائرو سے فلائی کر کے جب پاکستان آ رہا تھا تو اس وقت نیوز چل رہی تھی کہ چائنا میں ایک کووڈ آیا ہے, وہاں بیڈ سے ٹرانسفر ہوا ہے اور اس قسم کی نیوز. یہ اندازہ نہیں تھا کسی کو بھی کہ اس طریقے سے یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور دنیا کے حالات کہاں سے کہاں چینج ہو جائیں گے. پہلے بھی بیماریاں آتی رہیں, دنیا میں آتی رہیں, سب کچھ ہوا, بٹ جس طرح یہ اس نے افیکٹ کیا ہے کہ لوگوں کو بالکل لاک ڈاؤن کر کے رکھ دیا. اور جتنا انپریسیڈنٹلی ورک کو کووڈ نے متاثر کیا ہے شاید کسی اور پینڈیمک نے متاثر نہیں کیا. پرابلمز آتے رہے, سب کچھ رہا. جیسے اسپینش فلو آیا تھا 1918 اور 20 2 سال تک رہا. 3 اس کی ویوز آئیں جس میں کہتے 50 کروڑ لوگوں کو یہ وائرس ہوا, جس میں 5 کروڑ لوگ مر بھی گئے تھے اور اس وقت ہیوج. لیکن اس طریقے کے جو پرابلم اور مسائل جو ہے وہ نہیں ہوئے. ابھی بھی لوگ اس فیئر میں ہے, ٹیرر میں ہے کہ ابھی سیکنڈ ویو آئے گی اور پرابلم بڑھے گی اور کیا کچھ ہوگا. دس از ویری الارمنگ. تو جیسے ایک گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پہیے میں ہوا کم ہو تو گاڑی سموتھلی چلتی رہے گی. سیم از دا کیس جیسے آج کل جو بیسٹ اپروچ یوز کی جا رہی ہے بایو اسپرچل اپروچ. تو ورک از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, جو کہ ہماری کہتے ہیں منی میکس دا میر گو, جہاں سے ہمیں فائنینشیل گینز آتے ہیں اور جس سے ہمارے پوری زندگی کا سرکل چلتا ہے. تو وہ ورک جو ہے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یورپ میں اور یو ایس کے اندر ورک کے بارے میں کہتے سب سے اہم ترین چیز جب کوئی متاثر ہوتی ہے وہ ورک ہے. اگر ورک متاثر ہو گیا تو اس سے پھر باقی لائف ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے, کیونکہ ورک کے جو 6 to 8 آورز ہیں یا 42 آورز ویک ہے, وہ اس میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ورک آورز کے اندر اپنے آپ کو فٹ رکھوں, اسٹیبل رکھوں. فزیکلی کوئی پرابلم ہے, سائیکولوجیکل کوئی ایشو ہے, کوئی اور پرابلمس ہیں, ان سب کو وہ کس طریقے سے کنٹرول کر کے اپنے ول پاور کو ورک کو مینٹین رکھتا ہے. لیکن جب ورک متاثر ہونا شروع ہوتا ہے تو ساری لائف ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو کووڈ کے دوران یہ ایک بہت بڑا ایشو آیا کہ جس سے لوگوں کا ورک متاثر ہونا شروع ہو گیا. ابھی میں ملتان میں ایک میرا پیشنٹ تھا, میں چونکہ آؤٹ ڈور پریکٹس بھی کرتا ہوں, تو اس کو دیکھا کہ اس نے بتایا کہ اس کی بڑی اچھی جاب تھی, بینک میں پرماننٹ جاب تھی. تو کووڈ کی وجہ سے وہ اتنا ڈسٹرب ہوا, کسی چیز کو ٹچ کرنا, گھر سے نکلنا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو جاب سے ریزائن کرنا پڑا. لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں, بٹ ہی انیبل ٹو ڈو سو. تو اس کو متاثر کرنا, اس کو اتنے متاثر ہوا کہ اس کو او سی ڈی ہو گیا اور وہ پھر آن لائن علاج کروا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور مدر ساری فیملی ڈسٹرب ہوئی تھی, ینگ چیپ. تو اس طرح بہت سے الزائمر کے کئی پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں جن کو اینگزائٹی اتنی زیادہ کووڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے, دے آر انیبل ٹو سروائیو. اسی طرح کچھ ڈپریشن کے پیشنٹس اور جن کو کووڈ نہیں ہوا وہ بھی. تو ورک جو ہے بہت ڈراسٹیکلی لوگوں کا اس سے متاثر ہوا ہے.
70% जो अमेरिकन हैं कोरोना वायरस के आउटब्रेक से, वो कहते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, वो 70% लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा इसकी वजह से। और उसके बाद 40 मिलियन जो अमेरिकन हैं उन्होंने देखा कि वो अपनी एंजाइटी को कोप कर रहे हैं जो कोविड की वजह से डेवलप हुई, और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो ग्लोबली अगर आप देखें तो 1 ट्रिलियन जो है वो एनुअली इसके ऊपर स्पेंड हो रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर जो कंपनी स्पेंड कर रही हैं। इट्स सो प्रेवलेंट, इतना ज्यादा प्रॉब्लम दुनिया में ज्यादा है और उससे इतने ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। और 94% जो यूएस के एम्प्लॉय हैं वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में कंप्लेन करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे चल रहा है, उसकी वजह से हमें मसाइल आ रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन मिली, बहुत सी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का परमिशन दे दिया, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक है, और इसके अलावा अमेजोन है और माइक्रोसॉफ्ट है, और जैक डॉर्सी जो ट्विटर का मालिक है उसने तो यहाँ तक कह दिया कि आप सब लोग जो है फॉर लाइफ टाइम आप घर में काम कर सकते हैं, इतना उन्होंने कर दिया। लेकिन उससे प्रॉब्लम्स जो है, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, उनकी पे कम, वो पे कट रही है और उससे मसाइल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो कोविड की वजह से लोगों की जॉब्स, खास तौर पर कुछ लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन उन बेचारे लोगों का क्या हालात है अगर आप देखें, जो लोग होटल्स में काम कर रहे हैं, जिनके रेस्टोरेंट में काम है, वो तो घर से काम नहीं कर सकते। तो ये इन लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा मुतासर, जो डेली वेजर्स हैं उनकी लाइफ बहुत मुतासर हुई है। और ज्यादातर पाकिस्तान की आबादी ऐसे लोगों पर है जो कि जिनके पास रेनी डे के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, तो उनके जो सारे रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो गए। लेकिन पाकिस्तान में एक एडवांटेज है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं, वो बड़ा हेल्प करते हैं रेनी डे के अंदर, अपने रिश्तेदारों की, बाकी लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। जब कोई मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, तो वो उनकी बड़ी हेल्प करती है। मैं खुद जब कोविड के डेज थे या जब मेरी लाइफ में कोई क्राइसिस और प्रॉब्लम आता है, तो मैं, मेरे फादर को पता चलता है, फौरी तौर पर वो चेक काट के मुझे दे देते कि ये ले लो। मैं जब इनकार भी करूँ तो मैं राजी नहीं, जाओ ले लो। तो पीपल, हमारे लोगों के अंदर रेजिलियंस बहुत ज्यादा है और लोग केयर करते हैं, जिसकी वजह से हम इस रेनी डे से, इन मुश्किल टाइम से हम गुजर जाते हैं। तो इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से लोगों की जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हुई, बहुत इनसिक्योर लोग रहे। और स्ट्रेस इतना ज्यादा होता था, मुझे खुद याद है जब मैं डेली यूजली वर्क के ऊपर जाता था, तो फिर रहता था कि कभी हो ना जाए, हो ना जाए, और बाद दफा एंजाइटी इतनी बढ़ जाती थी, मेरा दिल करता है जो होना है हो जाए, ताकि होकर ठीक हो दोबारा ना। तो इट्स लाइक दैट, इस किस्म के मसाइल और ऐसी चीजें जो है वो आ रही थी। तो जॉब सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी बहुत स्ट्रेसफुल है। और दुनिया में इंसान जो है वो एक चीज की बहुत ज्यादा तलाश में रहता है, वो सिक्योरिटी है। और कोई बंदा इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकता कि हाँ मैं ये सिक्योरिटी है तो कुछ नहीं होगा। और सिक्योरिटी सिर्फ हमें मिलती है रिलीजन के साथ, अल्लाह ताला की मिलती है। अगर हम क्लोज टू रिलीजन है तो हमें ये एक बिलीव के पीछे हमारी कोई ताकत है, कोई जात है जो हमें संवार रही है, हमें हैंडल, तो वो हमें एक सिक्योरिटी देती है। तो उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम कर। और जो लोग इस कोविड के दौरान रिलीजन के करीब थे, अल्लाह ताला के ज्यादा करीब थे, वो इसमें से बड़े अच्छे तरीके से गो थ्रू कर गए। 4 क्वालिटी जिन लोगों के अंदर है या रहेंगी, या जो लोग डेवलप कर लेंगे, वो हर किस्म के स्ट्रेस से, एंजाइटी से इसमें निकल सकेंगे। पहले इसमें रेजिलियंस है, पाकिस्तानी कौम वैसे बहुत रेजिलियंट कौम है, या एबिलिटी टू बाउंस बैक नॉर्मल, रेजिलियंस है, वो बड़े मुश्किल से मुश्किल हालात से निकल जाते हैं। दूसरी इसमें जो चीज है वो है कि ऑप्टिमिज्म, यू ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर। जैसे एक ग्लास में अगर आधा ग्लास पानी का भरा हुआ है, एक बंदा कहेगा हाफ ग्लास फुल है, एक बंदा कहता हाफ ग्लास एम्प्टी, बोथ आर राइट। लेकिन एक की पेसिमिस्टिक अप्रोच है, एक की ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। तो जिसकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है वो उसको पॉजिटिवली ले रहा है और वो गॉन थ्रू कर देगा, और उसके माइंड के अंदर, वो ब्रेन में वो केमिकल्स पैदा होते हैं जो एंडोर्फिन्स और बाकी जो उसको आगे लेके जाते हैं। और तीसरी चीज होप है। होप के एक्रोनिम भी है, होल्ड ऑन पेन एंड्स। तो वो जो होप है इंसान को, वो बहुत आगे तक लेके जाती है। जब तक हमारे अंदर होप है, हमें कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं, हम उससे निकल जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना हो। तो होप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथी चीज सेल्फ एफिकेशियस बिहेवियर है, कि हमारी सेल्फ एफिकेसी कितनी है। हम अपने जिस काम में पढ़ते हैं कि हम उस काम को करने में कामयाब हो जाते हैं कि नहीं। तो सेल्फ एफिकेसी, ये 4 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेंटली हेल्दी हैं उनके अंदर ये चारों चीजें पाई जाती हैं, और इसमें से वो उस पर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने देखा है कि 74% जो लोग हैं
उनको फैमिली मेंबर जो है वो स्ट्रेस में है, कि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता रहा अमेरिकन के अंदर खास तौर पर, कि हमें कोरोना हो जाएगा, या एक कोरोना होगा तो बाकी सबको होना शुरू हो जाएगा। और 74% केसेस में गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया है कोरोना वायरस के हवाले से। उन्होंने बेतहाशा फंड्स दिए हैं लोगों को, पाकिस्तान में भी दिए, अमेरिका में तो बेतहाशा दिए गए, जितने उनके पास फंड, जितनी बड़ी कंट्री उतना ज़्यादा उन्होंने फंड दिया। इसके अलावा उनकी जो 74% लोगों की रूटीन डिसरप्ट हो गई, उनकी रूटीन खराब हो गई, उनको डेली रूटीन में एडजस्ट करने, नई रूटीन में एडजस्ट करना पड़ा। जैसे बहुत से लोग, जैसे मुझे भी बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट कंप्यूटर फ्रेंडली, तो बहुत सी चीजें अभी मैं सीख रहा हूँ, तो लर्न करने में मौका मिला कंप्यूटर के साथ क्रिएटिव वर्क जूम के ऊपर लोग कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसी ऑनलाइन एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हो गए, वो सीख रहे हैं। तो ये लोगों को एक मौका, जब जिसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जहां आप सफर कर रहे हैं वहां नई चीजें भी सीख रहे हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम जो है अपॉर्चुनिटी लेके आती है, तो लोग उससे फायदा भी उठा रहे हैं। जहां हमें लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमारे जो फंड्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो डिप्लीट कर रहे हैं, और साथ साथ हम नई चीजें लर्न भी कर रहे हैं। और इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग जो है वो वालदैन के, ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस था कि वो 71% वालदैन अपने और अपने बच्चों के लिए साथ साथ कर रहे हैं, उनको अरेंज करके दे रहे हैं कि उन्हें डिस्टेंस लर्निंग करनी है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और बेतहाशा लोग, जैसे भी सुसाइड की बात हो रही थी, कि कुछ पुअर पीपल जिनके पास अपने खाने के खर्चे नहीं है, वो नेट अवेलेबल नहीं करवा सकते, बच्चे कैसे डिस्टेंस लर्निंग करें, किस तरीके से करें, ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसकी वजह से रिमोट लर्निंग, जो वर्चुअल लर्निंग बहुत ज्यादा पेंडेमिक होती जा रही है, लोग इसकी तरफ आने शुरू हो गए। इसके अलावा रिसर्च फ्रंट एंड हेल्थ वर्कर के हवाले से WHO ने ये रिकमेंड किया कि अगर उनको प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो अपने एम्प्लॉयर से बात करें, और इसका कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस है, मैं एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ, तो वो मैं उनको हेल्प करने में हेल्प आउट कर सकते हैं, कि वो उनकी हेल्प करें ताकि वो इससे निकलने में उसकी मदद कर सकें। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा देखें साइन सिम्टम जो स्ट्रेस के अंदर आए जाते हैं, उसमें इरिटेबिलिटी है, और एक बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ा हमारा इमोशन है। जो लोग इस इमोशन को मैनेज करना सीख लेते हैं वो जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, एंड दैट इज एंगर। एंगर और डिनाइल, जो इन दोनों चीजों को हैंडल करना सीख लेते हैं वो जिंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं। और बहुत सी, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा, मैं 30 ईयर्स इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जितना नुकसान मुझे एंगर ने पहुंचाया है वो किसी और चीज नहीं पहुंचा। कि एंगर जब किया जाता है तो उससे बहुत से खुद भी बंदा डिस्टर्ब होता है, और एम्प्लॉइज की या बाकी लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, और वो इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक इमोशन है। तो इसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें बहुत ज्यादा बड़ा। और इसके अलावा फोकस करने में और कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम रहा, इनएबिलिटी टू मोटिवेशन की कमी रही, ये जो सिम्टम्स इसमें पैदा होते हैं स्ट्रेस के अंदर, सैडनेस और लो मूड के इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं, मोनोटनी हो जाती है। मोनोटनी की वजह से खासतौर पर कोविड के दौरान लोग शुरू में बहुत खुश थे, लेकिन आस्ते आस्ते इरिटेबल और मोनोटनस, जो एक रट से घबरा गए, और वो बेडरूम से निकले किचन में चले गए, किचन से बेडरूम में आ गया, टीवी लॉन्च में आ गया, तो उनकी लाइफ महदूद होकर रह गई। जहाँ लोग कंफर्टेबल होते हैं कि हम जाए वहाँ पे चले जाए, किचन में चले गए या बाहर चले गए, आप बाहर फ्रेश एयर में, जो सिगरेट पीने वाले लोग बाहर जाकर सिगरेट पी लेते हैं, फ्रेश एयर भी ले लेते हैं, थोड़ा सन ले लिया, या बाकी वो अपने कैफे में चले गए, तो एक लाइफ के अंदर एक एक्टिविटी होती। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने शुरू हो गए, नर्वसनेस और एंशियस फीलिंग बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई, और बिल्कुल आप अपने फ्यूचर के बारे में अनक्लियर है कि क्या होगा। दिस इज ऑफ एंजाइटी, कोविड में जो प्रॉब्लम आता रहा। उसके अलावा बर्नआउट की फीलिंग्स, बर्नआउट बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम इसमें आता है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू जो है वो स्लीप का है, कि स्लीप के इश्यूज बहुत ज्यादा था। आजकल मैं कल भी बात कर रहा था कि ऐसी घड़ियां आ गई हैं जो आपको बताती हैं कि आपकी स्लीप कितनी है, आपने कितने घंटे सोए हैं, कितनी आपकी डीप स्लीप रही है, कितनी आपकी स्लीप कम है, क्या कुछ करना है। और आज सुबह एक मैं ऑनलाइन में कर रहा था, एक ऑस्ट्रेलिया और दुबई के साथ एक प्रोग्राम था, उसमें भी इसी हवाले से मेंटल, तो वो बता रहे घड़ी जो है आपको अलार्म करती है कि ब्रीथ करे, हालांकि ब्रीदिंग तो बंदा हर वक्त कर रहा होता है, लेकिन दे टॉकिंग अबाउट डीप ब्रीदिंग, कि कुछ देर के बाद आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, जो कि हमें रिलैक्स करती है, कंफर्टेबल करती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है। इसके अलावा हमें इसको मैनेज कैसे करना है स्ट्रेस को, उसके लिए माहिरीन ये कहते हैं कि एक तो डीप ब्रीदिंग है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, दिन में 3-4 दफा, 5 दफा, 8 से 10 दफा डीप ब्रीदिंग करें, जो कि आप हमें रिलैक्स करता है। उसमें ऐसे केमिकल खारिज होते हैं जो हमें कंफर्टेबल और रिलैक्स करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा अपने जो थोड़ा सा ब्रेक करके अपने साइकिल को, अपने टाइम को डिवाइड करके थोड़ी सी वैरायटी ऑफ वर्क लाया गया, उससे एक मोनोटनी से निकल के बंदा कर सकता है। एक काम कर दिया, दूसरा कभी तीसरा, इससे बहुत फर्क पड़ता है।
इसके अलावा रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, अब तो ऐसी ऐसी एक्सरसाइज आ गई है बेड के ऊपर भी योगा कर सकते हैं, इस किस्म की एक्सरसाइज भी आ गए हैं। और न्यूट्रिशन के अपनी खुराक और अपनी इस पेंडेमिक के दौरान लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं प्रिवेंटेबल काज ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी है जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक ओबेसिटी है, दूसरा स्ट्रेस है और तीसरा स्मोकिंग। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने रिजर्व बचा सकते हैं, अपनी पैसा और अपनी नस्लों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लें, ओबेसिटी या फूड को प्रॉपर्ली हैंडल करना सीख लें, और तीसरी चीज़ स्मोकिंग से डील करना सीख लें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम काम के ऊपर वापस आते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि अपना प्रॉपर स्केड्यूल हम करें, और जो स्ट्रेस रिड्यूसिंग एप्स हैं या स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर हम फोकस करें क्या क्या है, और अपने जो वर्कर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ प्रॉपर्ली चैट करते रहें, सोशलाइज करते रहें, और प्रोवाइडेड कैपेसिटी मेंटेन करें ना हो। और आज बहुत हम सुबह भी बात कर रहे थे माइंडफुलनेस के वजह से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है, या इसको थेरेपी भी कह सकते हैं। इस आजकल इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, तो माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टेल्स अस वी हैव टू फोकस हियर एंड नाउ। इकबाल ने भी ये कहा था, फकत हम रोज़ है तेरा ज़माना, तो अल्लाह ताला भी हमें आज के बारे में पूछता कि अपने आज को बेहतर से बेहतर किए, कल की फिक्र नहीं हमें कहते। तो हम अपने आज के ऊपर फोकस करें, अपने माइंडफुलनेस के ऊपर काम किया जाए, और छोटी छोटी शॉर्ट ब्रेक्स ली जाए जिससे हमें वी आर फील कंफर्टेबल, और अपना प्लान्स रेगुलर बेसिस पे किया जाए, जिस उस प्लान्स के अंदर एक बैलेंस डेवलप किया जाए जिसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो, फैमिली को इनकॉर्पोरेट किया जाए, स्पेंड टाइम विद द फैमिली, जिससे मामला और जिंदगी में बेहतर से बेहतरी आ सकती है। और इस दौरान, काम के दौरान करते हुए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, वी ऑल नो कि हम अपने हाथों को वॉश करना है विद सोप एंड वाटर, अगर वो अवेलेबल नहीं है या टाइम थोड़ा, तो फिर हम सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं, और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, इस तरीके से काम करें कि हमारा डिस्टेंस मेंटेन रहे, और अपने सराउंडिंग को डिसइंफेक्ट करें, क्योंकि कोरोना इज स्टिल देयर, अभी वो गया नहीं है, लेकिन हम लोग बड़ी जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। और अपने सैनिटाइजर्स जो है उसको रेगुलरली, जो कि अल्कोहल बेस्ड होना उसके लिए जरूरी है, और मास्क बहुत इम्पोर्टेंट। ज्यादातर व्हेन यू आर अमंग द पीपल, गैदरिंग में है तो मास्क जो है पहने, लेकिन व्हेन यू आर अलोन डोंट वियर मास्क, क्योंकि ये हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन को भी कम करते थे, इसलिए हम मास्क उस वक्त पहने व्हेन वी आर अमंग विद अदर पीपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अलावा है कि स्टे एट होम, अगर आप बीमार हैं तो रेस्ट करें, और अपने एम्प्लॉयर को बता दें कि ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। और इसके अलावा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बी काइंड टू योरसेल्फ, हम अपने साथ काइंड रहे, अपना ख्याल करें, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का ख्याल करें, एंड बी पॉजिटिव एंड क्लोज टू ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला के करीब रहे, जैसे रहने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है, आगे हमारा इस वर्क का क्या फ्यूचर है। ये अमेरिका में रिसर्च हुई कि 49% लोगों ने कहा कि दे आर कंफर्टेबल कि वो अपने काम में दोबारा चले जाएंगे और लाइफ रिज्यूम कर लेंगे। तो 51% लोगों ने कहा कि शायद मुश्किल है कि हम इस साल काम के ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो 58% लोग ये कहते थे कि शायद हम आगे कई साल तक हम उस तरीके से रिज्यूम नहीं कर सकेंगे जैसे कि पहले करते थे। तो जो वी नीड टू लर्न एंड एंटिसिपेट कि हम अब आगे जिंदगी को हमने किस तरह गुजारना है, कि पार्टली हम वर्क फ्रॉम होम करें और अपनी एक्टिविटीज को मैं मार्केट्स में गया हूँ, कई मैंने ऐसी शॉप्स देखी हैं, कई मैंने ऐसे आउटलेट्स देखे हैं जो मल्टी नेशनल के हैं, एंड दे आर वाइप्ड आउट फ्रॉम देयर, वो है ही नहीं, से उनका नाम खत्म हो गया। मैं 2005 में जब जलजला आया था वहां गया था, तो वहां बता रहे थे लोग कि ये जो पहाड़ है इनके ऊपर पूरे के पूरे गाँव आबाद थे, और अब वो गाँव के गाँव सफेद से मिट गए, पता ही नहीं गाँव कहाँ चले गए। तो इसी तरीके से बेशुमार छोटे छोटे बिजनेसेस जो लोग कर रहे थे वो सफेद से मिट गए, खत्म हो गए, पैरिश हो गए। और बहुत से लोगों को फायदा भी हुआ इस पेंडेमिक के अंदर, बहुत सारे लोगों ने ग्रो भी किया, बहुत सारे लोग, लेकिन ज्यादातर लोगों जो है इससे उन्होंने सफर किया। उनको हमें वही चार चीजें हैं, अगर हम रेजिलियंस है, होप है और सेल्फ एफिकेसी है, तो हम हर किस्म की प्रॉब्लम से, मुश्किल से गुजर सकते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट डे मॉर्निंग आफ्टर नाइट, हर अंधेरे के बाद एक सुबह जरूर आती है। तो इट समटाइम नाइट माइट गो लॉन्ग, बट अल्टीमेटली वी नीड टू गेट नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला में मदद करे और हम इस वर्क को, इससे निकल के अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you so much, Dr. Amjad, for your kind words. Moving ahead, we are talking about ways of how to reduce stress. हम बार बार ये बात कर रहे हैं with different
panelists who have talked to us about how to remove stress. एक strategy है eye movement desensitization and reprocessing. It is known as EMDR. So we have compiled a short clip. हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है to reduce stress. So ये वीडियो जो है वो हम आपको सब शो करेंगे for the first time, and it will be available for you to watch and follow on our social media websites. So please take some time and watch this video. हालात या परेशानी में बटरफ्लाई हग मुश्किल वक्त, हालात या परेशानी में खुद को पुरसुकून रखने के लिए एक ऐसे तरीक़ेकार है या मश्क है जिसे हम किसी भी वक्त अपने जज्बात की शिद्दत को कम करने के लिए, परेशानी को कम करने या अपनी अच्छी यादों को और अच्छे वक्त को दोबारा से याद करने और उस वक्त आपने कैसा महसूस किया था, उन सबको दोहराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बटरफ्लाई हग कैसे किया जाता है। अपने दोनों बाजुओं को अपने सीने पर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखें कि आपका बायां हाथ आपके दाएं तरफ हो और आपका दायां हाथ बाएं तरफ हो। अपने दोनों अंगूठों को आपस में फंसाकर कॉलर की हड्डी के बिल्कुल दरमियानी जगह पर रख लें। अब आप अपनी हथेलियों को अपने सीने पर महसूस कर सकते हैं और आपके हाथ की पहली उंगली की नोक आपको अपने कॉलर की हड्डी पर महसूस हो रही होगी। हाथों और उंगलियों का रुख कंधे की तरफ करें। अब आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ एक तितली की शक्ल में आ गए। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें या फिर आधी आंखें इस तरह खुली रखें कि आपकी नजर नाक की नोक की तरफ हो। इसके बाद अपने हाथों को बारी बारी इस तरह हिलाएं जैसे तितली अपने पर हिलाती है, लेकिन बारी बारी। पहले बायां हाथ, फिर दायां हाथ, फिर बायां हाथ और फिर दायां हाथ। हाथों को हिलाने की रफ्तार ऐसी हो जो आपके लिए आरामदेह हो। इसी तरह करते रहें। पहले बायां, फिर दायां, बायां, दायां, ऐसे जैसे आप किसी को थपक रहे हों और अपने किसी प्यारे को सुकून पहुंचा रहे हों। थपकी को महसूस करें। बहुत खूब, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने हाथों को इसी तरह हिलाते रहें। आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लें। अपने जहन पे चलने वाले ख्यालात पर गौर करें और देखें कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ज़हनी ख्यालात, तस्वीर, आसपास की आवाज़ों, खुशबू या बदबू या जिस्मानी एहसासात पर गौर करें। इन तमाम ख्यालात को बदलने या ख़त्म करने की कोशिश ना करें, ना ही इनको अच्छा या बुरा समझें। इन ख्यालात या इन सोचों को बादल की तरह गुजरने दें। चलें, अब हम गहरी सांस लेते हैं। मुश्किल सूरत हाल में पुरसुकून रहने की मश्क शुरू करते हैं। जब आप एक गहरी सांस खींच लें तो एक लम्हे के लिए रखें और कुदरती तौर पर सांस बाहर निकालें। अब इसी रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता थपकी देना शुरू करें। पहले दाएं, फिर बाएं। जबरदस्त। सिर्फ सांस पर गौर करें। बहुत खूब। जिस्मानी एहसासात पर गौर करें। आराम से थपकी देते रहें और अपने आप को इस लम्हे से लुत्फ अंदोज होने दें।
अब आप इसमें किसी मंजर, इंसान या किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसके साथ आपकी अच्छी यादें जुड़ी हुई हों, जैसे कि कोई मुस्बत या अच्छी और खुशी के एहसास दिलाने वाली याद के बारे में सोचें, या किसी प्यारी सुकून वाली जगह उसके बारे में सोचें। उस वक्त के बारे में सोचें जब आपने खुद को मजबूत या खुद के बारे में अच्छा महसूस किया। थोड़ा वक्त लें और गौर करें कि आपके जहन में क्या आया। इस याद पर गौर करें और सोचें कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जिस्मानी एहसासात पर गौर करें और उसके साथ साथ बटरफ्लाई हग को जारी रखें। जैसे जैसे आप थपथपाते रहें, सांस को एक ही रफ्तार से जारी रखें। अपने आप को इस लम्हे से लुत्फ अंदोज होने दें। क्या कोई ऐसा लफ्ज है जो आपके एहसासात को बयान कर सके, जैसा कि पुरसुकून, महफूज, आरामदेह या फिर पुरअमन या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। इस लफ्ज को सोचें और उसके जुड़े हुए अच्छे एहसासात और जज्बात पर गौर करें। अब थपथपाना जारी रखते हुए अपने बारे में मुस्बत अल्फाज जमा करते जाएं, या ये सोचें कि आप आने वाले मुश्किल हालात का किस तरह सामना करना चाहेंगे। जैसे कि ये आप सोच सकते हैं कि सब मुझसे प्यार करते हैं, या मुझ में कई खूबियां हैं, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ। जो भी मौजूदा सूरत में आपके मुताबिक ठीक हो, आप वो सोच सकते हैं। जब आप इन अल्फाज को आहिस्ता आवाज में या अपने जहन में अपने लिए दोहरा रहे हों, तो बटरफ्लाई हग जारी रखें और सांस को एक ही रफ्तार से जारी रखें। गौर करें कि इन अल्फाज को कहने से आप कैसा महसूस करते हैं और अपने आप को इस लम्हे से लुत्फ अंदोज होने दें। जब तक आपको जरूरत हो जारी रखें, या जब तक आप पर सुकून महसूस ना कर सकें तब तक आरामदेह रफ्तार से सांस को अंदर बाहर करें और थपकना जारी रखें। जब आपको महसूस हो कि आज के लिए इतना काफी है, तो एक लम्हे के लिए रुकें और अपने हाथों को अपने सीने पर ही रहने दें। अब आप गहरी सांस अंदर खींच लें और कुछ सेकंड बाद सांस बाहर निकालें। अपने तवज्जो को अपने इर्द गिर्द की जगह और आवाजों पर वापस लाएं। याद रखें कि आप दिन में जितनी बार चाहें उतनी ही बार इस मश्क को कर सकते हैं, चाहे 1 या 2 मिनट के लिए करें। जितनी ज्यादा दफा आप ये मश्क करेंगे, उतनी ही जल्दी ये मुस्बत एहसासात खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। इससे आपको मौजूदा लम्हे में वापस आने और अपने जज्बाती हालात को पुरसुकून करने में मदद मिलेगी। आप में से हर एक का इस मश्क को तवज्जो के साथ करने का बहुत शुक्रिया। Thank you so much for watching the video. We will be moving forward towards our question time. I would request my panelists to be available for us, and I'll be addressing some questions which have been addressed to us in the chat box, and I'll try and answer as soon as possible. So
we have a few questions, sir. We'll start from how people in low resource areas can take help during COVID. This is the first question that we have. Professor Zainabzadeh, if you would like to address this question, please. With no resource, I am understanding कि शायद वहाँ पर वो facility जो किसी mental health professional या health professional की है, physically शायद मौजूद नहीं है, लेकिन आजकल हमारे पास tele health services हो गई हैं और mobile phone या telephone बहुत सारी जगहों पर available है. So it's good to have that information and spread it as much as possible ताकि वो लोग जो कि जिनको ये facility physically इतनी ज़्यादा available नहीं है, वो इसको tele health service के through ले सकें. Thank you so much, ma'am. Dr. Amjad, there is a question which says how to support our beloved one tested positive for COVID-19 while staying away. बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. जैसे भी ऐड भी उन्होंने बताया था कि टीवी में एक ऐड आया था कि हमने उसको तनहा नहीं छोड़ना, तो अपनी पूरी फैसिलिटीज के साथ, अपनी पूरी कवर के साथ हमने उसको हेल्प प्रोवाइड करनी है, जिसकी हेल्प जो है नेट से अवेलेबल है. अपने जो मोहल्ले जो है उनके मशवरे के साथ अगर कोविड पॉजिटिव है उनको आप हेल्प प्रोवाइड करें, अपने को पूरी तरह प्रोटेक्ट करके और सब कुछ करके. और इसमें जैसे घर के अंदर है तो आप डिस्पोजेबल बर्तन आप इस्तेमाल करें. अगर डिस्पोजेबल नहीं कर सकते तो बर्तन वो अंदर ही रहे, वो खुद ही वॉश करें, खुद ही करें. तो हमारी एक सिस्टर थी, उनको ऐसा हुआ था, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया और टेलीफोन के ऊपर सारा राब्ते में रहते थे और हर चीज़ उनको बताई जा रही होती थी, वो चीज़ें उनको घर में प्रोवाइड कर दी जाती थी, वो खुद ही उसको सारी हैंडल कर रही थी. और कोई एमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई अगर खुदा न खास्ता कोई सिवियरिटी आती है फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अपने हॉस्पिटलाइज होना. और मोस्ट ऑफ द केसेस में 97-98% केसेस में सिवियरिटी नहीं आती रही और वो इस तरीके से मैनेज किया जाता रहा और लोग उसमें हेल्प करते रहे. और लव्ड वन तो वो ज़्यादा केयर करते हैं, उनके अंदर फियर भी बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हेल्प करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. लास्ट क्वेश्चन वी हैव, डॉक्टर साइमा, अगर आप उसको प्लीज एड्रेस करना चाहें. एडोलेसेंस में अगर ये सेल्फ हार्म बहुत हाई हो रहा है तो क्या इसकी इंटरवेंशन पे भी कोई काम हो रहा है? डॉक्टर साइमा, अगर आप प्लीज एड्रेस करें. जी जी, थैंक यू मैम. एडोलेसेंट में जैसे डॉक्टर मुर्शद ने भी अपनी पिल की रिसर्च को भी शेयर किया और जैसे पाकिस्तान के हवाले से एडोलेसेंट के अंदर सुसाइड और सेल्फ हार्म जो है वो बहुत बढ़ रहा है. प्रिवेंशन के लेवल पे काम जरूर हो रहा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से कहें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लेवल पे जो काम करने की ज़रूरत है वो आई पर्सनली फील एज ए प्रोफेशनल कि वो हमें स्कूल्स और कॉलेजेस के लेवल पे, प्रिवेंटिंग लेवल पे जो काउंसलिंग सेशंस या जो ओरिएंटेशन सेशंस हैं वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. बिकॉज मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है अपने इर्द गिर्द देखते हुए कि हमारे यहाँ जो पेरेंटिंग में थोड़े से आप कह लें कि उस तरह से जो फ्लॉज रह जाते हैं कि एक लेवल पे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं और एक लेवल पे ये है कि वहाँ पर बच्चों के साथ मतलब जब आप उन्हें बहुत ज़्यादा अनअटेंडेड भी छोड़ते हैं या उनकी जो एग्रेशन है या उनकी जो डिमांड्स हैं वो जो है ना बहुत ज़्यादा फुलफिल करने की आदतें डाल देते हैं, वो चीज़ भी उनको जो है इस लेवल पे ये सुसाइड और सेल्फ हार्म के लेवल पे लेके जाती है. क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जब वो पूरी नहीं होती तो फिर ये कि वो इस किस्म के टास्क में इंडल्ज होते हैं. तो प्रिवेंटिव लेवल पे ही ज़्यादा काम किया जाने की ज़रूरत है और अब अवेयरनेस भी आ रही है और लोग इस पर काम भी कर रहे हैं. लेकिन अगर हम ये कहें पाकिस्तान के हवाले से कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड काम हो रहा है तो वो नहीं, लेकिन जैसे ये आप लोग ये वाई CMAP वगैरह का काम और इस तरह से जो काउंसलिंग लेवल पे है वो शुरू ज़रूर हुआ है और आई होप कि इंशाल्लाह अगर हम इसको मतलब करते रहें और ये कि अवेयरनेस क्रिएट करते रहें तो इंशाल्लाह चेंज विल कम. Thank you so much, Dr. Saima. So these are all the questions that we have in our chat box right now. I would like to thank everyone for taking out their time and being with us today. Special thanks to Pakistan Institute of Living and Learning, the team who has worked to make this program possible for us today. Thank you so much for all your effort. Sir, Professor Nusrat, if you would like to add some thank you note or a few lines at the end before we end. Bilkul, thank you very much, and Sameen and Pakistan Institute of Living and Learning, Manchester Global Foundation, all our funders and all the audience.
It's been excellent. We are hoping that each one of you are ambassadors for mental health. तो अगर और कुछ नहीं तो जिस घर में आप मौजूद हैं उस घर में ज़रूर जिक्र कर लें about जो बहुत अच्छी बातें की हैं डॉक्टर साइमा ने, प्रोफेसर ज़ैनब ने, डॉक्टर अमजद ने, कि हम समीन ने बात की लो रिसोर्स सेटिंग की कि a lot of things we can do जो सेल्फ मैनेजमेंट की चीजें हैं, जैसे ये वीडियो भी है और ये मैसेज जरूर अपने घर में जरूर बाकी लोगों को बताएं. एंड थैंक यू वेरी मच, ब्रिलियंट एवरीबॉडी. थैंक यू. खुदा हाफिज. Thank you, sir. Thank you so much. Allah Hafiz, everyone. Okay, Allah. Allah Hafiz.